Welcome back in lecture 1 part A. In today's lecture we will study our backward difference operator, averaging operator, shift operators and the relation between these operators. In previous lectures, first A, B, C and D parts, we studied our forward difference operator. Today we will study the remaining operators and the relation between them. First definition is backward difference operator when apply on the function of y of x. Here we are taking the function is y of x. Then this operator is known as backward difference operator and we read it as Nabla. N-E-B-L-E. Okay, Nabla. And how we define this? So Nabla when apply on a function y of x, this is equal to, when we apply on y of x, this is yx and the previous value of the function. Here h is my difference interval, interval of differencing. Also in a subscript form, we can write it as Nabla y of x is equal to, this is Nabla y, in subscript is this one, and this is equal to yx minus y of x minus of h. In first lecture part A, I have taken here y of x, then argument values at x0, x1 and this one. Suppose x is this, y of x, and this is x0, this is x1, this is x2 and x of n. If I write value y at x0, value is y0, y at x1 is y1, y at x2 is y2 and so on. Y at xn is equal to yn. If I want to find the first difference, if I want to write this y1, Nabla of y1. Nabla y1 means this value and value of the function at previous argument. So this is y1 minus of y of naught. And if I want to write Nabla of y2, similar on y2 and previous value of the function at previous argument. So this is y of 1. Actually this is in symbolic form क्या है ये? This is Nabla. This is value of y at x0 plus 2h. In first lecture we have done this xn is equal to x0 plus nh. अगर equally spaced data अगर आपके पास है तो Nabla of y2 यानी कि Nabla of y at x0 plus 2h is equal to this one as it is. तो y at argument x2, ठीक है, यानी कि 2h माइनस प्रीवियस आर्गुमेंट क्या होगा y at x0 प्लस ऑफ h. आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं Nabla of y at x0 plus 2h क्या होता है, देखो अगर यहाँ मैं पुट करती हूँ n की जगह 2 तो दिस इज x2 and x2 is what x0 plus twice of h. So ये क्या बनेगा, दिस इज x2. तो व्हाट इज दिस, दिस इज सेम वैल्यू y at x2 minus of y of x1. In some book there is this notation, in some book this is one and this one, but general हम use ये वाली करते हैं, this is preferable. Okay, so this is my first backward difference operator and you can write in second backward difference operator as you have studied in forward difference operator. So Nabla square, if you apply on y of x, similarly as we done in forward difference operator, तो ये क्या बनेगा आपका, this is Nabla and this Nabla apply on y of x. Nabla means backward difference operator and this is, ये whole notation क्या है आपकी, this whole notation is backward difference of function y of x. So when you apply this here, this Nabla first operator is here, apply this, so this is y of x minus y of x minus of h. This is written as Nabla of yx minus Nabla of y
x minus of h. If I write here, suppose nabla n time, I am applying this on y of x. तो this is nabla, देखो यहाँ 2 है तो यहाँ कितने हैं 1 है, ठीक है। तो यहाँ अगर n है तो यहाँ क्या हो जाएगा n minus 1 and this apply on yx minus this nabla, this is n minus 1 and y of x minus of h also, ठीक है। तो this is my backward difference operator apply on a function y of x. One more thing you have to see, study here, देखिए this one, अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि this is what in term of delta operator, this is nothing but this is delta of y naught and this same difference वैल्यू तो ये सेम आएगी ना आपके पास, जब आप क्वेश्चन करेंगे आपके पास फंक्शन होगा तो y1 और y नोट ये तो सेम वैल्यू है, दोनों का डिफरेंस। अगर आप इसे नोटेशन में लिखना चाहें तो डेल्टा की फॉर्म में दिस वैल्यू इज इक्वल टू डेल्टा y नोट एंड इन नैबला ऑपरेटर दिस सेम वैल्यू इज इक्वल टू नैबला ऑफ y1. इट मीन्स देयर इज ए कनेक्शन बिटवीन दीज ऑपरेटर्स, ठीक है। तो यही रिलेशन हमें फर्दर फाइंड आउट करना है. नाउ टेक द डेफिनेशन ऑफ next operator. Now central difference operator, and this operator is denoted by small delta. Read as small delta. When we apply small delta on function y of x, it gives the difference of these two terms. This is value of y at x plus h by 2 minus value of y at x minus h by 2. In subscript form we can say that this delta अप्लाई ऑन y किसका फंक्शन x का ना, तो y ऑफ x. तो दिस इज वैल्यू ऑफ y एट x प्लस हाफ माइनस वैल्यू ऑफ y एट x माइनस h बाई 2. अभी यहाँ आप इस टर्म को क्या कहेंगे, दिस इज फर्स्ट सेंट्रल डिफरेंस ऑफ फंक्शन y ऑफ x. फॉर एग्जाम्पल देखिए y1 माइनस वाई नोट, ठीक है, ये टर्म डिफरेंस किसका है y1 माइनस वाई नोट का. अब हमें देखना है कि इसकी सब्सक्रिप्ट क्या आएगी. तो हेयर इज़ अ रूल, इन फ्यूचर आप करेंगे भी, जो यहाँ सब्सक्रिप्ट है और जो यहाँ है, यहाँ अगर आपको लिखना है तो ये क्या है, इन दोनों का एवरेज. देखो ना x प्लस एच बाई 2 प्लस एक्स माइनस एच बाई 2 का हाफ, ये जो वैल्यू है दिस इज़ y. यहाँ सब्सक्रिप्ट क्या बन रही है, दिस इज़ इक्वल टू कह सकते हो, दिस इज़ y ऑफ x प्लस डेल्टा. ये आपका सब्सक्रिप्ट अगर आपको लेनी है तो क्या करना है, इन दोनों का एवरेज कर देना है. तो x माइनस एच बाई 2 बाई 2, तो ये देखो क्या बनता है, दिस इज़ y ऑफ x प्लस x2, h2 कैंसिल, 2x बाई एक्स इज x. सो अगर मैं आपको बोलती हूँ कि y1 माइनस वाई नोट, राइट दिस एक्सप्रेशन इन टर्म ऑफ स्मॉल डेल्टा, तो दिस इज डेल्टा ऑफ y1 प्लस 0 बाई 2 एंड सिमिलरली y3 माइनस y2, दिस डिफरेंस इज इक्वल टू डेल्टा ऑफ y5 बाई 2. गॉट द आंसर. अभी हम फ्यूचर में करेंगे बच्चे, जैसे अपना टॉपिक है कि रिलेशन बिटवीन द ऑपरेटर्स. इफ़ आई सेड गिव मी द y3 माइनस y2 in term of delta, so this expression is equal to delta of y of 2. फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर. अगर मैं इसको बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर की टर्म में आपसे कहती हूँ तो दिस डिफरेंस इज इक्वल टू नेबला ऑफ y ऑफ 3, ठीक है. सिमिलरली अगर यही डिफरेंस आपसे सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर की टर्म में अगर आस्क किया जाए तो दिस इज डेल्टा ऑफ y ऑफ हाफ. और अगर ये डेल्टा, ये स्मॉल डेल्टा है, अगर इसको फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर की टर्म में पूछूं तो क्या आएगा, 1 इंक्रीमेंट वैल्यू माइनस सेम वैल्यू, तो दिस इज डेल्टा ऑफ वाई नॉट. और अगर यही नेबला की फॉर्म में पूछे यानी बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, तो दिस इज नेबला ऑफ वाई ऑफ 1. इट शोज दैट देयर आर द सम रिलेशन बिटवीन दीज ऑपरेटर्स, ठीक है. One more thing,
जैसे आपने फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, हायर डिफरेंस ऑपरेटर किए हैं, सिमिलरली यू कैन टेक हायर डिफरेंस सेंट्रल ऑपरेटर्स। तो इनके लिए क्या है कि जैसे मान लो मैं आपको बोलती हूँ कि सेकंड सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर बताओ, डेफिनेशन दो ऑन वाई ऑफ एक्स। सो सिंबल विल बी स्मॉल डेल्टा स्क्वायर ऑपरेटिंग ऑन वाई ऑफ एक्स। तो डेल्टा स्क्वायर है, यू विल अप्लाई, you can write this delta into delta of y of x. Now apply this central difference operator on y of x. So by the definitions, this delta is outside, this is value of y at x plus h by 2 minus value of y at x minus h by 2. Now this delta goes here, this delta goes here. So I got delta of operating on y of operating on फर्स्ट टर्म पे आएगा ना, इस पे डेल्टा अप्लाई कर दोगे दिस वन, एंड दिस डेल्टा गोज हियर. सो यू कैन राइट डेल्टा वाई एक्स प्लस एच बाई टू माइनस डेल्टा ऑफ वाई एक्स माइनस एच बाई टू. नाउ अब नेक्स्ट आपको जो डिफरेंस है वो किस पर लगाना है, वाई ऑफ एक्स प्लस एच बाई टू पे लगाना है. अब एक्स प्लस एच बाई टू, इसकी नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी, दैट विल बी, अब ये सेंटर है आपका एक्स प्लस एच बाई टू, तो इससे हाफ लेंथ आगे हाफ लेंथ पीछे, हाफ लेंथ आगे करोगे तो क्या आएगा, एक्स प्लस एच बाई टू प्लस एच बाई टू. सो द नेक्स्ट वैल्यू इज वाई ऑफ एक्स प्लस एच बाई टू प्लस एच बाई टू. एंड जहाँ आप खड़े हो सेंटर है ना, एक्चुअली ये सेंटर डिफरेंस ऑपरेटर है, तो आप सेंटर में यहाँ हो वाई एट एक्स. तो एच का अब टोटल आपका जो लेंथ ऑफ इंटरवल है दैट इज़ योर डिफरेंस, दैट इज़ योर एच. तो आप यहाँ खड़े हो तो इसका प्रीवियस और इसका फॉरवर्ड, तो फॉरवर्ड वैल्यू कितनी जाएगी, जहाँ आप खड़े हो उससे एच प्लस बाई टू आगे, और जहाँ आप यहाँ हो तो इससे बैक कितना होगा, दिस इज़ माइनस एच बाई टू, तो दिस इज़ एक्स माइनस ऑफ एच बाई टू. अब आप इस क्वेश्चन में यहाँ कहाँ है आपका सेंटर, एक्स प्लस एच बाई टू पर. अगर आपका सेंटर एक्स प्लस एच बाई टू पे है तो नेक्स्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स प्लस एच बाई टू प्लस एच बाई टू, और प्रीवियस वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस एच बाई टू. ठीक है, तो दिस इज वाई ऑफ एक्स प्लस एच बाई टू प्लस एच बाई टू माइनस वाई ऑफ एक्स प्लस, ये तो आप खड़े हो, इसका प्रीवियस ही हो जाएगा. ठीक है, दिस माइनस साइन दिस वन, दिस डेल्टा अप्लाई ऑन एक्स माइनस एच बाई टू. नाउ योर सेंटर इज एक्स माइनस एच बाई टू. अब इसके आगे हाफ करोगे तो क्या आएगा, दिस एच बाई टू ऐड हो जाएगा, और माइनस करोगे तो इसी टर्म में से एच बाई टू सब्ट्रैक्ट करोगे. अब देखिए ये क्या बना, वाई, दिस इज एक्स, एच प्लस एच बाई टू, दिस विल गिव यू हाफ एच, हाफ एच तो गिव यू कंप्लीट एच. ठीक है ना, तो दिस इज वैल्यू ऑफ वाई एट एक्स प्लस एच, एंड दिस वन कैंसल आउट, तो वैल्यू ऑफ वाई एट एक्स एंड दिस वन value of yx minus and minus 2 time of y of x plus y of x minus of h. ठीक है, तो ये भी हो सकता है कि सिंपल क्वेश्चन आ जाए 2 मार्क्स में कि अप्लाई द सेंटर डिफरेंस ऑपरेटर ऑन y of x 2 टाइम. ठीक है ना, सेकेंड ऑर्डर भी बोल सकते हैं. अब ये भी क्वेश्चन एक बार एग्जाम में आया था कि डेल्टा स्क्वायर ऑन y1, राइट दिस एक्सप्रेशन. तो ये आंसर क्या बनेगा, ये आप देख लेना, ये मैंने फुल सॉल्व किया हुआ है. तो योर आंसर इज y2, दिस इज y2 माइनस 2 टाइम ऑफ y1 प्लस y एट 0. ठीक है, तो नाउ नेक्स्ट वी विल सॉल्व द रिलेशन बिटवीन दीज ऑपरेटर्स. नाउ वी विल टेक two more operators, that is average operator and shift operator. Then we will take the relation between them. Next operator is average operator, and it is denoted by this symbol, and the name of the symbol is mu. We will read it mu. When we apply this mu on a function y of x, तो ये आपको क्या आंसर देगा, दिस इज इक्वल टू म्यू ऑफ वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई ऑफ एक्स प्लस एच बाई टू.
मीन्स आपका फंक्शन सपोज यहाँ y की वैल्यू x पर है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ का डिफरेंस सपोज डिफरेंस टोटल h है, तो इसकी प्रीवियस हाफ इंटरवल पे तो वैल्यू ऑफ y एट प्रीवियस क्या होगी, अगर h/2 डिस्टेंस में ये वाला करते हो तो इंटरवल लेंथ h/2 लेते हैं, तो दिस इज y ऑफ x माइनस ऑफ h/2 एंड दिस नेक्स्ट इज दिस पॉइंट इज x प्लस h/2, तो वैल्यू क्या आएगी इसकी y ऑफ x प्लस h/2. तो दिस पॉइंट इज माई सपोज दिस इज x एंड दिस होल लेंथ इज योर x, तो दिस हाफ इज h/2 एंड दिस प्रीवियस इज माइनस ऑफ h/2. तो म्यू इज द एवरेज ऑपरेटर. तो एवरेज ऑपरेटर क्या करेगा, लेफ्ट राइट दोनों का एवरेज. तो दिस इज y ऑफ x प्लस h/2 प्लस वैल्यू ऑफ y एट x माइनस h/2, और उन दोनों वैल्यूज़ का क्या करेगा, टू वैल्यूज़ आ गई ना इसमें, तो इट विल टेक द एवरेज. दैट्स वाई वी कॉल्ड इट एवरेज ऑपरेटर. ठीक है, and in the symbolic subscript form you can write this is equal to 1/2 of y x plus h/2 plus y of x minus h/2. सेम नोटेशन जैसे आप y फंक्शन हो अगर x है तो आप इसको क्या लिखते हो, दिस इज y ऑफ x. ओके, तो दिस इज माई एवरेज ऑपरेटर. एंड द नेक्स्ट इज माई इम्पोर्टेंट शिफ्ट ऑपरेटर. देखो नेम ही सजेस्ट कर रहा है शिफ्ट ऑपरेटर. शिफ्ट ऑपरेटर में क्या होता है, अगर ई शिफ्ट ऑपरेटर यू आर अप्लाइंग ऑन वाई ऑफ एक्स, तो वाई दिस इज माई एक्स पॉइंट एंड हेयर द इंटरवल इज एच, तो दिस पॉइंट इज एक्स प्लस एच एंड द नेक्स्ट विल बी एक्स प्लस 2 ऑफ एच, नेक्स्ट विल बी एक्स प्लस 3h. अगर इक्वल इंटरवल है तो प्रीवियस वैल्यू क्या आएगी, x माइनस ऑफ h. अगर मैंने इसे सेंटर मान लिया तो इसके प्रीवियस वैल्यू x माइनस एच होगी, और प्रीवियस अगर इंटरवल करती हूँ तो x माइनस ऑफ 2h. तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ e? e is my shift operator and it shift the function at the next point when we apply e on this function. So y if I apply e on y, that is function of x, so it will give the नेक्स्ट वैल्यू यानी कि y ऑफ x प्लस एच. सपोज जैसे हमने नोटेशन की है y नॉट. y नॉट क्या था, दिस इज नथिंग बट वैल्यू ऑफ y एट x नॉट. तो जब आप ई ऑपरेटर इस पर लगाएंगे तो ये क्या देगा, वैल्यू ऑफ y नेक्स्ट पर शिफ्ट कर देगा, यानी कि y ऑफ x प्लस एच. एंड व्हाट इज दिस, दिस इज y ऑफ 1. ओके, if you write here e2 means you are applying this shift operator on function y of x 2 times. So ये क्या करेगा, again e here, this operator also follow the property as in delta e की पावर mn है ना, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, दिस इज इक्वल टू e की पावर m प्लस n. ठीक है, तो e स्क्वायर मीन्स e इंटू ई ऑपरेटिंग ऑन y ऑफ x. तो e ऑन y x आंसर कितना देते हैं, y ऑफ x प्लस एच. दैट्स वाई आई रोट हियर e y of x plus h. You are now applying this shift operator on y at x plus h. तो x plus h से next क्या होगा, x plus 2h. तो वैल्यू ऑफ y कहाँ आ जाएगी, x plus 2h पे. तो दिस इज माई शिफ्ट ऑपरेटर. ठीक है, सिमिलरली इफ यू अप्लाई दिस n टाइम तो क्या कर देगा ये y ऑफ x प्लस nh. देखिए n इज इंटीजर. इफ आई सेड कि ई इनवर्स, अब आप यहाँ खड़े हो तो वैल्यू क्या है इसकी, ये तो x की वैल्यू है ना, फंक्शन की वैल्यू क्या है y ऑफ x. अगर आप यहाँ इस पर वैल्यू चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, शिफ्ट ऑपरेटर को y x पे अप्लाई करेंगे, तो e माइनस है ना, तो जो आपका आर्गूमेंट है x उसमें माइनस ऑफ 1 डिमिनिश कर देगा ये. ठीक है, तो दिस विल गिव वैल्यू एट x माइनस ऑफ h. तो ये प्रीवियस पे कर देगा, तो डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ दिस वन. ठीक है, एंड आल्सो वी कैन से n इज इंटीजर. आप n ऐसे भी ले सकते हो, ऐसा कोई यूनिक इंटीजर ही है. हेयर आपका फार्मूला लिखा है तो इंटीजर के लिए लिखा हुआ है. अगर आपका e की 1/2 है एंड y ऑफ आप x है,
तो आप क्या करेंगे, दिस इज़ वाई, अभी हाफ पे इंक्रीमेंट देगा यानी कि एक्स प्लस एच बाई टू, हम इसे ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं. ओके, नाउ यू हैव स्टडीड डेल्टा, nabla, small delta, average operator, and this universal operator, this E operator, that is shift operator. ठीक है, and out of these 5 operators, this delta and this E, these are known as fundamental operators. Why we are calling these fundamental? Because remaining the operators, we can write those in term of this delta and this E. So there are 6-7 relations. In today lecture I will give you proof of 2 relations. ठीक है, और ये दोनों ही आपके एग्जाम में पूछे गए थे 2 मार्क्स में, 1 मार्क्स में भी एक बार पूछा था पार्ट के फॉर्म में. तो फर्स्ट रिलेशन बिटवीन दीज ऑपरेटर इज दिस डेल्टा ऑपरेटर कैन बी रिटन in term of this fundamental operator, that is shift operator, in the form of this one. This delta is equal to E minus of 1. तो how to give the proof of this one? So proof देखिए इसका, I apply this delta operator on y of x. By the definition, what is the value of this one? If interval of differencing is your h, I am taking here interval of differencing is small h. So give me the definition. क्या थी? y of x plus h, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है ना, तो फॉरवर्ड वैल्यू लेगा माइनस y of x. अब मुझे आंसर क्या देना है, इस फॉर्मेट में देना है. तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ शिफ्ट ऑपरेटर? दिस इज द इंक्रीमेंट ऑफ 1 ना, तो दिस इज e अप्लाई ऑन y of x. This is minus y of x. So I can write this is equal to e minus of 1 operating on y of x. Here on the left hand side, this delta operator, I am applying this on the function y of x, and this e minus 1 operator, ये भी तो एक operator है ना, तो this operator is applied on the same y of x. So this implies this delta operator is equivalent to e minus of 1. Got the answer? The next operator or relation is with nabla. There is a backward difference operator and there is shift operator. ठीक है, तो next is you have to show that nabla operator is equal to 1 minus of e inverse. तो हाउ टू गिव द प्रूफ ऑफ दिस वन? आपको मेमोराइज भी करने हैं रिलेशंस, क्योंकि सम टाइम जब हम क्वेश्चंस करेंगे इंटरपोलेशन के, तो आई नीड दिस रिलेशन टू डायरेक्ट कैलकुलेशन. नाउ द प्रूफ इज ऑन द सेम लाइन. अप्लाई दिस नैबला ऑपरेटर ऑन द फंक्शन वाई ऑफ एक्स. बाय डेफिनेशन अप्लाई द डेफिनेशन ऑन वाई ऑफ एक्स. तो कौन सा ऑपरेटर है? बैकवर्ड. तो बैकवर्ड होगा तो क्या आंसर देगा? दिस इज वाई एक्स माइनस वाई ऑफ एक्स माइनस ऑफ एच. तो दिस इज व्हाट, ये वाई एक्स तो एज इट इज रखो क्योंकि आप वाई एक्स ही लेना चाहते हो राइट हैंड साइड में. नाउ राइट दिस वन इन टर्म ऑफ शिफ्ट ऑपरेटर. तो दिस इज ई इनवर्स operating on y of x. yx is here, yx is here, so 1 minus of e inverse operating on yx. Now comparing both sides, this is also applied on yx, this is also applied on y of x. So this implies that your nabla operator is equal to 1 minus of e inverse. The third property is, आपको बताना है कि central difference operator, that is your delta, this is equal to e की power half minus e की power minus half. How will to give, how we can give the proof of this one? Apply your delta on again y of x. अब delta central difference है, y x पे अप्लाई कर रहे हो तो हाफ माइनस एच बाई टू ऊपर, एच बाई टू डाउनवर्ड, तो नेक्स्ट वैल्यू माइनस प्रीवियस वैल्यू. तो दिस इज वाई एक्स पे हो ना, तो इसकी डेफिनेशन क्या कहते हैं? अप्लाई द डेफिनेशन. तो डेफिनेशन क्या है? एच बाई टू माइनस वाई ऑफ एक्स माइनस ऑफ एच बाई टू. नाउ अप्लाई द डेफिनेशन ऑफ शिफ्ट ऑपरेटर.
यहाँ कितना शिफ्ट किया गया, हाफ, यहाँ कितना किया है, माइनस हाफ. सो दिस इज ई की 1/2 एंड वाई ऑफ एक्स. दिस इज ई की, यहाँ कितना वो किया है इसमें डिक्रीमेंट, -1 माइनस h/2 का ना. तो यू कैन राइट दिस इज वाई ऑफ एक्स. सो फ्रॉम दीज टू वाई एक्स. समटाइम्स स्टूडेंट क्या करते हैं, वाई एक्स इधर लिख देते हैं, तो ये नहीं मिस्टेक करनी. दिस इज एन ऑपरेटर एंड दिस इज ऑपरेटिंग ऑन वाई ऑफ एक्स. सो हमेशा इसे ऑपरेटर ही लेना है. ठीक है, मोस्टली स्टूडेंट जब लिखेंगे तो वाई एक्स बिफोर ऑपरेटर लिख देंगे, तो दैट इज रॉन्ग. ओके, तो दिस इज हाफ ई की and this is minus half and y of x. Now compare with the left hand side with the right hand side. So this delta, I am writing here three parallel lines. So it indicates these are the operators and both all are equivalent. ठीक है. Then there is one more operator. What is that? What was that? That is mu. So you have to prove that mu is equal to, that is average operator. तो ये आपका क्या था, 1/2 ई की हाफ प्लस ई की -1/2. तो हाउ टू गिव द प्रूफ ऑफ दिस वन? अगेन अप्लाई द डेफिनेशन ऑफ एवरेज ऑपरेटर ऑन फंक्शन वाई ऑफ एक्स. व्हाट इज द डेफिनेशन? दिस गिव्स द एवरेज वैल्यू ऑफ वाई एट एक्स प्लस हाफ प्लस वैल्यू वाई एट एक्स माइनस हाफ. h/2 है ना, इंक्रीमेंट डिपेंड करता है कितना लिया आपने. तो दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पे फिर शिफ्ट ऑपरेटर की डेफिनेशन अप्लाई करो. तो दिस इज ई की हाफ ऑपरेटिंग ऑन वाई ऑफ एक्स प्लस ई की -1/2 एंड ऑपरेटिंग ऑन वाई ऑफ एक्स. फ्रॉम दिस एंड दिस, one more thing, this is average operator, so 1/2 is complete outside. So this is 1/2. So I am writing it is e की हाफ प्लस e की -1/2 and this operating on y of x. If I compare, अच्छा यहाँ से स्टार्ट था ये ना, यहाँ से, ठीक है. तो यहाँ पे कंपैरिजन इसके ऊपर ऑपरेट किया, यहाँ ऑपरेट हुए. तो फ्रॉम दीज आई गॉट, क्या मिलेगा मुझे, म्यू ऑपरेटर इज इक्विवेलेंट टू ई की हाफ प्लस e की -1/2 and this average operator. Okay, ठीक है. Then one more operator that is very important, this delta operator. मतलब आपको रिलेशन देना है डेल्टा में, नेबुला में और ई में. आपको एक ऐसा एक्सप्रेशन लिखना है जिसमें डेल्टा भी है, नेबुला भी है और ई भी है. तो व्हाट इज दैट वैल्यू? देयर विल मे बी एनी रिलेशंस. ठीक है. तो हाउ टू गिव द प्रूफ? दिस इज द पैटर्न. जो भी आपको प्रूव करना है तो लेफ्ट हैंड साइड वाई एक्स पे अप्लाई करो, सिंप्लीफाई कर दो. राइट हैंड साइड भी वाई एक्स पे अप्लाई कर, मतलब उस फॉर्मेट में ही बनाना है आपको. जैसे मान लो इनका रिलेशन है, तो पेपर में आ जाएगी, शो दैट दिस डेल्टा ऑपरेटर इज इक्विवेलेंट टू दिस नेबुला ऑपरेटिंग ऑन ई. देयर आर 2 or 3 ways टू डू दिस. तो फर्स्ट क्या है कि आप ये ऑपरेटर उठा लो. तो आई एम सॉल्विंग इट हियर. प्रूफ देखो इसका कैसे करोगे, आपको ये प्रूव करना है ना. तो यू विल अप्लाई दिस ऑपरेटर ऑन योर फंक्शन वाई ऑफ एक्स. सो दिस इज नेबुला ऑपरेटिंग वाई एंड ई. आई एम ऑपरेटिंग दिस ऑन फंक्शन वाई ऑफ एक्स. फर्स्ट राइट द डेफिनेशन ऑफ दिस वन. What is the definition of a shift operator? It will shift forward because here is positive one na. So this is nebula and this y function of कहाँ चला जाएगा, 1 shifting हो जाएगा. ठीक है ना. तो this is y at x plus h. अब आपको क्या करना है, नेबुला ऑपरेट करना है. ठीक है. और कहाँ करना है, y of x plus h. तो दिस इज बैकवर्ड शिफ्ट ऑपरेटर, तो इसी पर लगेगा. और इसमें क्या सब्ट्रैक्ट करोगे, इसकी प्रीवियस वैल्यू. तो प्रीवियस क्या हो जाएगी, आपको h का इंक्रीमेंट मिला है ना, तो प्रीवियस क्या होगा, y of x. एंड नाउ गो टू द डेफिनेशन ऑफ फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर. दिस इज व्हाट, दिस इज डेल्टा ऑफ y of x.
गॉट द आंसर। अब देखो यहाँ पर ये जो ऑपरेटर है, दिस यू आर अप्लाइंग दिस ऑपरेटर ऑन दिस फंक्शन, एंड हियर दिस डेल्टा ऑपरेटर आप किस पे अप्लाई कर रहे हो, वाई एक्स पे। तो इट इम्प्लाइज दैट दिस बोथ ऑपरेटर आर इक्विवेलेंट। ठीक है, तो ट्राई द क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज इन द नेक्स्ट लेक्चर, we will solve them. Thank you.